آج کی کتاب کی مصنفہ نفیسہ خان صاحبہ سے مدرسوں جو تشریف لائیں اور استقبالیہ خیرات تقریر فرمائیں. محترمہ نفیسہ تمام محترم شخصیات، محترمہ فاطمہ پروین صاحبہ، جناب شکور صاحب، جناب اسلم فاروقی صاحب اور محبوب خان اکبر صاحب، اور یہاں ہال میں تشریف فرما ہر ایک کا فٹل استقبال کرتی ہوں کہ آپ سب نے اس محفل کو رونق بخشی اور میری حوصلہ افزائی کی ہے. میں کوئی مخالف نہیں ہوں، پھر بھی سب سے کچھ کہنے کی ہمت جٹا پا رہی ہوں. دراصل انسان اپنی روزمرہ کی زندگی سے اکثر ٹوٹ جاتا ہے. ایسے میں اگر ایسی محفلیں نصیب ہوں یا اس کے ہاتھ میں کوئی ایسا اخبار یا کتاب آ جائے جس میں کوئی دلچسپ کہانی یا افسانہ ہو جو آپ کے تھکے ماندے خیالات میں تبدیلی کا باعث بنے، تو آپ اس قلمکار کے ساتھ ساتھ خود بھی ان کرداروں کے ہم قدم بن جاتے ہیں جو ادیب کے تصور آفرینی کا نتیجہ ہے، اور یہی تحریر آپ کی تسکین کا وسیلہ بن جاتی ہے. موجودہ حالات میں ہر کوئی گھر میں قید ہو کر رہ گیا ہے. اس کے بعد اپنے ماحول سے فرار کا راستہ یا تو اسمارٹ فون ہے یا پھر مطالعہ. جو کتب بینی اور مطالعے کے عادی ہیں وہ دلچسپ معلوماتی مواد کے خواہاں ہوتے ہیں. محسوس کرتے ہیں کہ مضمون نگار نے دل کی ایسی بات لکھ دی جو وہ کہہ نہ سکا نہ لکھ پایا، لیکن کہانی کار نے ایک خوبصورت پیرانے میں اسے افسانہ بنا دیا جو ہو سکتا ہے کہ حقیقت پر مبنی نہ ہو، لیکن ہر سطح پر خالی حامل پتہ چلا جاتا ہے. مجھے جہاں تک یاد ہے میرے افسانوں کے کردار حقیقت پر مبنی ہیں جن کے ساتھ میں نے کافی وقت گزارا ہے، اس لیے اس میں حقیقت کا عنصر ہے. اس کی تصدیق یا تردید یہاں موجود قارئین کریں گے جنہوں نے پچھلے 30 سال سے مجھے لکھنے کا حوصلہ عطا فرمایا ہے. تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز جہاں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، ان سب کی روایت کی ہمیں پاسداری اور پابندی کرنی سے نہ جانے دیں. میں نے حقیقت و صداقت سے منہ پھیرے بغیر نازیبہ انداز تحریر سے ہمیشہ اعتراض کیا ہے، کیونکہ قابل قبول الفاظ کے لبادے و پیرہن کے ساتھ بھی اپنے خیالات کو قلمبند کیا جا سکتا ہے. میں قارئین کی مدعو زینت ہوں کہ میں مضامین والے بغض و ضرورت کا خاتمہ کریں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا خیال رد کر دیں. آئیے ہم سب مل کر اردو کی بقا و ترقی کے لیے کام کریں. اردو کی شاعری خان صاحبہ کی جو سوچ ہے اس کے پیش نظر ہم نے صاحب قلم سوشل ورکر کہیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. وہ اپنے قلم کے ذریعے سماج سدھار کا جو کام کر رہی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کوئی 4 دہائے اس کام کو گزر گئے ہیں. سیاست میں محترمہ کی تحریریں شائع ہوتی ہیں، ادبی حلقوں میں محترمہ بہت نمایاں کام کرتی ہیں اور ہم سب کی جانی پہچانی قلمکار ہے. آپ ان کی تحریریں پڑھے ہوں گے، اگر نہیں پڑھے ہیں تو آج کتاب کاؤنٹر پر رکھی ہوئی ہے، آج کی حد تک اس کو 200 روپے میں آپ لے جا سکتے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہوگا اگر آپ ان کی کتاب میں مضامین پڑھیں گے تو ان کی زبان بہت ہی سادہ اور بہت ہی نفیس ہے. آسان جملوں میں سیدھی سادی زبان میں بڑی گہری باتیں کرتی ہیں اور مجلسی زندگی میں بہت ہی مقبول شخصیت رہی ہے. ایک عرصے سے لکھ رہی ہے اور جس طرح وہ لکھتی ہے اردو میں اس طرح کے مضامین بہت کم لکھے جاتے ہیں. خواتین یا تو شاعری کرتی ہیں یا افسانے لکھتی ہیں، لیکن اصلاحی مضامین لکھتے ہوئے ہم نے بہت کم خواتین کو دیکھا ہے. بہت کم خواتین ہمارے سامنے دکھائی دیتی ہیں. نسائی ادب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پورا حیدر ہے، جیلانی بانو ہے، اور پاکستان میں بھی بہت سارے علماء ہیں، پروین شاکر ہیں. اپنے اپنے انداز سے انہوں نے دامن ادب کو متمول کیا، لیکن نفیسہ خاتون نے اپنے لیے جو راہ نکالی ہے وہ راہ اس پر غور کیجیے گا اور اس کا اندازہ آپ کو پڑھنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے. اور ان چند کلمات کے ساتھ میں آج کی گفتگو کے آغاز کے لیے ڈاکٹر اسلم فاروقی جو یہاں پر انہوں نے آغاز میں کی تھی
डिग्री कॉलेज में महबूबनगर से, और वो नफीसा खातून साहिबा के मज़ामीन के खालिदी हैं। वो अपने तासुरात यहाँ की खिदमत में पेश करेंगे। मैं उन्हें ज़हमत देता हूँ तशरीफ लाएँ और सामईन को मुखातिब करना। अस्सलाम वालेकुम। मैंने इब्तिदा में एक बात कही थी कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊँगा, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएँ, इस्तेक़बाल करें और इस्तेक़बाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब महमूद खान साहब। शहर में मौजूद सादत इकराम, प्रोफेसर फातिमा मैडम साहिबा, प्रोफेसर एस शुक्र साहब, और आज की इस तकरीब के खास बात इंतखाब की रस्में जो होने जा रही है मोहतरमा नफीसा खान साहिबा, और आज की महफिल में आपके जो ख़ानदान के अहबाब हैं और उर्दू शेर व अदब के शायकीन, और ख़ास तौर से एक नस्ल जो गुजरी है कि नफीसा खान साहिबा के जो मज़ामीन हम पढ़ रहे हैं, आज सब लोग इसी मोहब्बत में यहाँ जमा हुए हैं कि जिनकी तहरीरें पढ़कर हमारी फिक्र जो बेहतर हुई है। आज उस सलीफा की तीसरी किताब की रस्म इजराई हो रही है, तो आप सबका खैर मक़दम है। आप लोगों के जहनों में तजस्सुस होगा कि शहनशीन पर दो असातिज़ा किराम हैं और उनके साथ मेरा शागिर्द मोहम्मद असलम फारूकी। तो इस तजस्सुस को पहले मैं दूर करना चाहूँगा कि हुआ ये है कि मैं खुद भी अपने बचपन में 1985 के बाद से जो सियासत का जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है, अखबार का मुतालिया हम सब का जैसे शौक़ था, मेरा भी शौक़ था, तो सियासत के जो अदबी सफ़ा है उस पर जो मज़ामीन छपते थे उसमें मोहतरमा नफीसा खान साहिबा के मज़ामीन खास तौर से दिलचस्पी से पढ़े जाते थे। आप सब ने भी पढ़े हैं, मैंने भी पढ़ा है। तो इस किताब में जो मसलब बीनाई के नाम से शाया हो रही है, तो क्योंकि नफीसा खान साहिबा के सारे मज़ामीन सियासत अखबार के जरिए हम तक पहुँचे हैं। आज जाहिद अली खान साहब को यहाँ इस किताब की रस्म इजराई के लिए होना था, लेकिन उनकी नियामत में प्रोफेसर एस शुक्र साहब और फातिमा मैडम जो है इस किताब की रस्म इजराई करेंगे। तो सियासत से नफीसा खान साहिबा का रिश्ता जुड़ा हुआ है और सियासत से हम सब का रिश्ता जुड़ा हुआ है, और इसी अखबार के हवाले से मोहतरमा की तहरीरें हम तक पहुँची हैं और हमको जो है उन तहरीरों से अंदाज़ा हुआ कि कितनी बोझों पर उन्होंने लिखा है। तो हुआ ये कि जिसे हम जानते हैं नागार्जुन सागर को इन्होंने अपनी तहरीरों से जिंदा जावेद कर दिया। वो तो बयान के लिए मशहूर था, लेकिन मोहतरमा नफीसा खान साहिबा ने अपनी तहरीरों से भी नागार्जुन सागर को जिंदा कर दिया। तो वहाँ जो है आपके शोहर मुलाजिमत के सिलसिले में रहे, और उसके बाद तो मैडम भी जो है वहाँ पर स्कूल में टीचिंग करते हुए 30-35 साल वहाँ उन्होंने क़याम किया। बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, और रिटायरमेंट के बाद अक्सर तो हैदराबाद आते हैं, तो वहाँ की अदबी महफिलों में आप खास तौर से शिरकत कर रही हैं। गुज़िश्ता 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि नामवली सेमिनार में और वुमेंस कॉलेज के सेमिनार में और फाजिल हुसैन परवेज़ के जो गवाह का दफ्तर है, वहाँ जो भी उर्दू के प्रोग्राम होते हैं उसमें नफीसा खान साहिबा शिरकत कर रही हैं और उर्दू वालों की हौसला अफजाई कर रही हैं। तो ऐसे ही एक प्रोग्राम मैंने मैडम से बात किया और बोला कि आपकी किताबों का बहुत डिमांड है, लोग पढ़ना चाहते हैं, और किताब जो है रेख्ता पर एक किताब शायद आपकी है और बाकी की किताब और आपके मज़ामीन का दुनिया भर के जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने उनको अपना तारुफ पेश कराया और मैडम भी जो है सोशल मीडिया फेसबुक पर मेरे साथ हैं, तो मेरी एक्टिविटीज़ को देखती हैं। फरोग़ उर्दू के लिए जो कुछ भी काम हो रहे हैं हम लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं। 4-5 हज़ार का हमारा हल्का है सारी दुनिया में। या उर्दू में टाइप करेंगे तो आपका वो ब्लॉग आ जाएगा। वो ब्लॉग में गुज़िश्ता 6 महीने पहले तैयार किया था और उस पर तकरीबन 2000 लोग विजिट कर चुके हैं। तो उस ब्लॉग पर आपकी 2 किताबें जो है दस्तयाब हैं। तो आपकी जो किताब थी पहली किताब खरीब रगे जां, ये 2007 है, और अक्से दौरा ये 2000 उर्दू का जो सरमाया है किताबों की शक्ल में है। अभी किताब यहाँ रस्म इजरा हो रही है और कुछ लोग किताबें खरीदेंगे पढ़ेंगे, लेकिन दुनिया भर में उर्दू वाले हैं और उर्दू की आलमी बस्तियाँ वजूद में आ चुकी हैं, और उर्दू की जो पुरानी नस्ल है जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ है और उर्दू की जो नई नस्ल है उन तक भी जो ये
प्रोफेसर अशोक शुक्र साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो मैडम की खिदमत में इदारा सियासत की जानिब से मोमेंटो और तौसीफनामा पेश करें। ये जो इजलास की सूरत है इसमें बड़ा इन्होंने ताल्लुक किया है, आप इनके लिए तालियां करें। मैं हमेशा से ख्वाहिश करता हूँ कि वो प्रोफेसर फातिमा पटेल साहिबा की खिदमत में रुके और शामिल हो। शुक्रिया। हारून और शफायत ये मेहनत के नवासे हैं, आज के बच्चे हैं, कल के अदीब और शायर हैं, उनके लिए तारीफ है। जो एक अच्छी शायरा है वो मैडम की खिदमत में गुल पेश कर रही है। रफिया नौशीन साहिबा से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। रफिया नौशीन साहिबा समाजी रहनुमा हैं और प्रेसिडेंट लाइट्स क्लब की जानिब से मैडम की खिदमत में गुल पेश करेंगी। हफीजा खान साहब, रफिया नौशीन साहिबा से मैं ख्वाहिश करता हूँ। नफीसा खान साहबा को उर्दू से बड़ी मोहब्बत है, इसीलिए उन्होंने आज का दिन अपनी किताब की रस्म इजरा के लिए मुंतखब किया। इंतहाई मसरत हो रही है कि आज उर्दू हॉल में ख़वातीन व हज़रात के साथ नन्हे मुन्नों का जो इज्तिमा हुआ है वो दलालत करता है कि हम माजी की रिवायत को मुस्तक़बिल तक पहुँचाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। साहबा को मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी ये चौथी तस्नीफ है, चौथी है, उसकी वजाहत करो चौथी है क्योंकि मैं समझता हूँ कि तीसरी जो किताब थी उसके रचने में भाई फातिमा मैडम भी शामिल थे हम लोग। तो जहाँ तक नफीसा खान साहबा का ताल्लुक़ है, ये इनका एक इल्मी और अदबी घराने से इनका ताल्लुक़ है। उसको साबित करने के लिए इनके ख़ानदान के 3 नाम काफ़ी है। सादिया मुश्ताक, नफीसा खान से लेकर रफिया नौशीन तक, ये 3 नाम काफ़ी हैं। उनको अदबी से उन्होंने जो जायज़ा पेश किया उसके लिए वो काबिल मुबारकबाद है। मेरा शुक्रिया शुक्र साहब। एक दो एलान समाप्त फरमा लें कि एक तो ये है कि फौरी तौर पर मुशायरा शुरू होगा, आप बैठने की थोड़ी सी जहमत गवारा कर लें, लेकिन आप बहुत महसूस होंगे शहर के मुंतखब शुरा
की खिदमत में अपना कलाम पेश करेंगे। मैं हूं रिपोर्टर इकबाल मोहम्मद खान ITV से। आज हम उर्दू हाल में मौजूद हैं। उर्दू हाल जो शहर हैदराबाद का मशहूर व मारूफ हाल है, जो उर्दू के लिए काफ़ी मशहूर होता है। हैदराबाद की हर रोड, हर सड़क जो है आज उर्दू हाल की तरफ चले आ रही है, क्योंकि यहाँ पे नफीसा खान जो उर्दू की एक मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं, जो उर्दू के किताबें वगैरह लिखती हैं, वो उनकी आज तीसरी किताब का इनाग्रेशन है, जिसके लिए हम आज यहाँ जमा हुए हैं। आप देख रहे हैं कि उस प्रोग्राम के बाद जैसे वो किताब का इनाग्रेशन हो जाएगा, इंशाअल्लाह उसके बाद मुशायरा शुरू होगा, मज़ाहिया मुशायरा होगा। आप तमाम उसमें हाजिर रहें और देखते रहें। थैंक यू सो मच। और शायरा डॉक्टर फतेह मुजीबानी के साथ सिफारिश कर रहा हूँ कुछ। हमारी रूह ने जब इस बदन को देखा था, हमारी रूह ने जब इस बदन को देखा था, तो यूं लगा कि किसी ने कफन को देखा था। वो कौन अपनी निगाहों से बात करता था, वो कौन अपनी निगाहों से बात करता था, वो हमने बज़्म में किसके सुखन को देखा था। कली कली पे फिदाई लिखा हुआ पाया, कली कली पे फिदाई लिखा हुआ पाया। कुछ इस अदा से फिजाने चमन को देखा था, कुछ इस अदा से फिजाने चमन को देखा था। अजीब हाल था फिक्रे माश में उसने, अजीब हाल था फिक्रे माश में उसने, न तेरी जुल्फ न दारो रसन को देखा था। अजीब हाल था फिक्रे माश में उसने, न तेरी जुल्फ न दारो रसन को देखा था। अता हुई थी अजीबो गरीब सी नजरें, अता हुई थी अजीबो गरीब सी नजरें, हर एक जर्रे में एक अंजुमन को देखा था। हर बात पे जो इतनी कसम खा रहे हैं, हर बात पे जो इतनी कसम खा रहे हैं, मुझको ये लग रहा है कि बहका रहे हैं। मैंने तो बेखुदी में पुकारा था तुझको, मैंने तो बेखुदी में पुकारा था तुझको। इतनी जरा सी बात पे बल खा रहे हैं। शौरो आगही की संग बढ़ना चाहती हूँ मैं, शौरो आगही की संग बढ़ना चाहती हूँ मैं, नहीं बेदर्द दोनों से बहलना चाहती हूँ मैं। भले ही देर हो जाए पहुँचने सुबह मंजिल तक, भले ही देर हो जाए पहुँचने सुबह मंजिल तक, इन्हीं गुरबेज राहों से निकलना चाहती हूँ मैं, इन्हीं गुरबेज राहों से निकलना चाहती हूँ मैं। लगता है कि अब सहन में वो बीच की दीवार भी नहीं, अब सहन में वो बीच की दीवार भी नहीं। कैसे सलीम तार जुड़े भाइयों के साथ, अब सहन में वो बीच की दीवार भी नहीं। कैसे सलीम तार जुड़े भाइयों के साथ, हम भी तरह तरह की शनासाइयों के साथ रहते हैं एक वजूद में तन्हाइयों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।
दाल चावल में ही लुट जाए ना दौलत मेरी, दाल चावल में ही लुट जाए ना दौलत मेरी। भाई शेर, ना तो राहत रही मेरी ना तो फरहत मेरी, ना तो राहत रही मेरी ना तो फरहत मेरी, इस तरह हो गई बर्बाद लताफत मेरी, इस तरह हो गई बर्बाद लताफत मेरी। ये शेर तो चाहूँगा, जब भी टेंशन से बिगड़ती है तबीयत मेरी, जब भी टेंशन से बिगड़ती है तबीयत मेरी, पूछने लगते सभी बच्चे वसीयत मेरी। शेर समाज कीजिएगा कि जिनको दिलसुख नगर नहीं मालूम, जिनको दिलसुख नगर नहीं मालूम, वो भी लंदन की बात करते हैं। जिनको दिलसुख नगर नहीं मालूम, जिनको दिलसुख नगर नहीं मालूम, वो भी लंदन की बात करते हैं। बैठकर मेन होल के अंदर, बैठकर मेन होल के अंदर लोग सावन की बात करते हैं। बैठकर मेन होल के अंदर लोग सावन की बात करते हैं। आखिरी शेर समाप्त कीजिएगा। बगैर खास हमको कोई हुनर नहीं आता, हमको कोई हुनर नहीं आता, हम तो बस मन की बात करते हैं। हमको कोई हुनर नहीं आता, हमको कोई हुनर नहीं आता, हम तो बस मन की बात करते हैं। लिखी है रुबाइयाँ मैंने तेरी निगाह में देखी जो खूबियाँ मैंने तेरी निगाह में देखी जो खूबियाँ मैंने किसी की याद ने यूं बांध कर रखा मुझको, याद ने यूं बांध कर रखा मुझको, बड़े जतन से संभाली है बेड़ियाँ मैंने, बड़े जतन से संभाली है बेड़ियाँ मैंने। छुड़ा के हाथ वो गुम हो गया खलाओं में, छुड़ा के हाथ वो गुम हो गया खलाओं में, भरी बहार में तोड़ी है चूड़ियाँ मैंने, भरी बहार में तोड़ी है चूड़ियाँ मैंने। उनसे मिलने जब गए दिल में शुबा पहले से था, उनसे मिलने जब गए दिल में शुबा पहले से था, उनका एक आशिक वहां बैठा हुआ पहले से था। उनसे मिलने जब गए दिल में शुबा पहले से था, उनका एक आशिक वहां बैठा हुआ पहले से था। आप उसमें गिर पड़े हैं तो खता है आपकी, आप उसमें गिर पड़े हैं तो खता है आपकी, उनके घर के रास्ते में वो खड़ा पहले से था। ये मंदिर है, क्या किया जाए? जिधर भी देखो ये मंदिर है, क्या किया जाए? मुरीद बीवी का शौहर है, क्या किया जाए? जिधर भी देखो ये मंदिर है, क्या किया जाए? मुरीद बीवी का शौहर है, क्या किया जाए? और एक मतलब देखिए कि अजब चमन का ये मंदिर है, क्या किया जाए? अजब चमन का ये मंदिर है, क्या किया जाए? हर एक शाख पे बंदर है, क्या किया जाए? अजब चमन का ये मंदिर है, क्या किया जाए? हर एक शाख पे बंदर है, क्या किया जाए? हर एक शाख पे बंदर है, क्या किया जाए? अर्ज़ किया कि कोई खुश बदन भी तो चाहिए,
کوئی خوش ادا بھی تو چاہیے، کوئی خوش بدن بھی تو چاہیے، کوئی خوش ادا بھی تو چاہیے، میں کروں تو کس سے وفا کروں، کوئی بے وفا بھی تو چاہیے، کوئی خوش بدن بھی تو چاہیے، کوئی خوش ادا بھی تو چاہیے، میں کروں تو کس سے وفا کروں، کوئی بے وفا بھی تو چاہیے، میں کروں تو کس سے وفا کروں، کوئی بے وفا بھی تو چاہیے۔ عزت تیرے ہاتھ داتا ہم نے تیری اس دنیا میں، ہاتھ تو کٹوائے لیکن ہاتھ نہیں پھیلایا ہے۔ انہیں گمان تھا کہ اپنے مصحابین میں تھے، جناب ذل الہی منافقین میں تھے، اور انہی کے ہاتھ سے شبخون ہو گیا ان کا، انہی کے ہاتھ سے شبخون ہو گیا ان کا، تعینات جو ان کے محافظین میں تھے، تعینات جو ان کے محافظین میں تھے، اور سنا ہے ان کو بھی خداوری کا دعویٰ ہے، سنا ہے ان کو بھی خداوری کا دعویٰ ہے، چلے تھے ہم تو یہ پودے ابھی زمین میں تھے۔ مطلب ہے سبیخا مجھ میں جینے کا وقت ہے، سبیخا مجھ میں جینے کا وقت ہے، میری فطرت میں سمجھوتا وقت ہے، میری فطرت میں سمجھوتا وقت ہے۔